اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام خوبیاں، تمام بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، سارے شکر اسی کے لیے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ 3 نصیحتیں جو بدل دے زندگی، اگر کوئی عمل کر لے تو۔ بات عمل کی ہے، تو اس تناظر میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ ایک محفل تھی یا علیحدگی تھی، جو بھی تھا، اس میں سفیان ثوری کوئی صاحب تھے، تو انہوں نے امام جعفر سے پوچھا کہ امام، میں اس وقت تک آپ کے دروازے سے نہ ہٹوں گا جب تک کہ آپ مجھے کوئی خاص نصیحتیں نہ کر دیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے میری ایک بات یاد رکھو کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہو نا، تو تم اس کو اکنالج کرو، اس کو محسوس کرو اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے شکر ادا کرو، کیونکہ یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ پھر یہ سورۃ نوح میں جو ایک باقاعدہ آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے نا کہ اگر اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر اس طرح سے استغفار کریں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دیتا ہے شکر سے۔ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اصل چیز جو شکر ہے نا، وہ کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ایکنالج کرنا اپنے دل کے اندر، اپنی زبان سے، اپنے اعضاء و جوارح سے۔ اور اصل میں شکر یہ ہے جو میں سمجھتی ہوں، اور علماء کرام بھی اس بارے میں یہی روشنی ڈالتے ہیں اس پہ، کہ شکر کا اعلیٰ ترین جو ہے نا مقام، وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اس نے دی ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگانا، یہ شکر کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہمیں کان دیے ہیں، ہمیں سوچنے کی قوت دی ہے، ہمیں دل، دماغ، یہ نعمتیں دی ہیں، یہ تو ہمارے اعضاء ہیں، ہمارا وجود ہے، تو اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگانا، اللہ تعالیٰ کی حکموں کو ماننا، یہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں وسائل کی صورت میں، اور مطلب اگر کسی کے پاس کوئی اقتدار ہے یا جو بھی کوئی نعمت ہے، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں لگانا، یہ شکر کا انتہائی ایک اچھا جو ہے نا وہ مقام ہے۔ تو اس طرح سے پھر یہ کہ ان نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا اور ان کو اللہ تعالیٰ کا مطلب آگے اس کا مطلب اپنی نیاز مندی جو ہے اس کا اظہار کرنا، قدردانی کرنا دل کے ساتھ اور اپنی زبان کے ساتھ بھی، شکر الحمدللہ اللہ کل حال۔ کوئی بھی مصیبت آتی ہے اس پر بھی شکر، کوئی بھی نعمت ملتی ہے اس پر بھی شکر، یعنی راضی برضا رہنا۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا انہیں کہ دیکھو تم نا زیادہ باتیں کرنے کی بجائے نا تم عمل پر توجہ دو۔ یہ انہوں نے پھر باتوں میں کہا کہ اس چیز کو، اس پوائنٹ کو بھی یاد رکھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ کبھی بھی تمہیں یہ محسوس ہو کہ تمہارے جو ہے نا رزق، اس میں کوئی تنگی آ رہی ہے، تو تم کثرت سے توبہ استغفار کرنا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں نا، جیسے پہلے میں عرض کر رہی تھی۔ تو وہ پھر اس نقطے کے ساتھ اگر ہم جوڑتے ہیں تو یہ چیزیں آپس میں جو ہیں وہ ملی ہوئی ہیں، شکر بھی، استغفار بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے نا تو کئی دفعہ انسان ان نعمتوں کو سنبھال نہیں سکتا، تو اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ساتھ وہ استغفار بھی کرے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی یہ کمی کوتاہی ہو گئی ہے، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا رہے۔ یہ تو رزق میں کمی کا انہوں نے ذکر کیا ہے نا، تو استغفار ایک ایسی لاجواب جو ہے نا یہ بات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں تلقین کیا ہے سورۃ نوح میں، کہ اگر تم استغفار کرو گے، یہ ایک آیت ہے، اس کا مفہوم ہے، سورۃ نوح کی آیت ہے، اگر تم استغفار کرو گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مطلب تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا،
नहरों को जारी कर देगा, फलों की बहुतात हो जाएगी, कहत ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। तो ये सारी नेमतें इंसान को मैसर आ जाती हैं, और इसका ज़िक्र भी कुरान पाक में है। यानी ये वो नसीहत भी जो उन्होंने की ना, तो ये भी कुरानी नसीहत है दरअसल जो उन्होंने की। शुक्र वाली भी कुरानी नसीहत है और ये भी कुरानी नसीहत है। इस ज़मन में एक वाक़या मुझे याद आता है कि हज़रत हसन बसरा की एक महफ़िल लगी हुई थी, तो उसमें एक बंदा आया और उसने अपने रिज़्क़ की कमी की शिकायत की। तो उन्होंने फरमाया कि आप इस्तिग़फ़ार करो। अब उसी महफ़िल में एक दूसरा बंदा आया, उसने कहा कि मेरे यहाँ तो औलाद नहीं होती। उन्होंने कहा इस्तिग़फ़ार करो। तीसरा बंदा आया कि खुश्क साली की शिकायत है, तो उन्होंने कहा कि इस्तिग़फ़ार करो। उन्होंने कहा कि ऐ इमाम, आप तो सबको एक ही बात कह रहे हैं कि इस्तिग़फ़ार करो, और सबके मसाइल तो मुख्तलिफ़ हैं। फिर उन्होंने यही सूरत नूह की आयत जो है वो उनके सामने रखी। कहते हैं कि ये मैंने उससे इस्तदलाल करके मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि तुम तौबा इस्तिग़फ़ार करोगे तो इस तरह से अल्लाह ताला रिज़्क़ के भी दरवाज़े खोल देगा, तुम्हें औलाद भी देगा, तुम्हें कुशाद भी अता करेगा और खुश्क साली को भी दूर कर देगा। और इसी ज़मन में एक और वाक़या मेरे ज़हन में आया है, वो ये कि एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं, कहत था और बारिशें नहीं हो रही थी ना, तो उन्होंने भी सिर्फ़ तौबा इस्तिग़फ़ार पर इक्तफ़ा किया। तो साहबा ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, आपने तो बारिश के लिए कोई दुआ की नहीं। तो उन्होंने भी फिर सूरत नूह की इस आयत को सामने रखा और उन्होंने ये फरमाया कि मैंने आसमान के उन दरवाज़ों को खटकार दिया है जहाँ से बारिशें होती हैं। कि यानी कई दफ़ा चीज़ों की कमी बेशी का इन्हसार इंसान की अपनी कोताहियों पर भी होता है, तो ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि कसरत से हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दूसरा ये है कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। ये इमाम साहब ने उन्हें ये नसीहत की और ये दोनों कुरानी नसीहतें हैं। तीसरी जो उन्होंने नसीहत की वो क्या थी कि इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि सुफ़ियान सौरी, अगर किसी हाकम या किसी ज़ालिम से तुम्हें नुकसान पहुँचने का डर हो तो कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो। ये तो हाकम के सामने है ना, इस और ये एक महदूद कैनवस है, लेकिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ऐसा ज़बरदस्त कलमा है कि इसको अर्श के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना कहा गया है। और उन्होंने ये भी फिर आगे फरमाया था कि ये कलमा कशाइश की कुंजी और जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। तुम देख लोगे कि ये कलमा किस तरह तुम्हें ज़ालिम के जुल्म से महफूज रखता है। फिर कहते हैं कि ये सुनकर हज़रत सुफ़ियान सौरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया कि मुट्ठी बंद कर ली। जैसे हम अपनी ये मुट्ठी खोलते हैं ना, और इस मुट्ठी में जैसे ये पेन है, इस पेन को ऐसे मैंने पकड़ा है और इस पेन को पकड़ के ये एक महसूस चीज़ है, इसको मैं ऐसे करके बंद कर लूँ, ये तो एक महसूस चीज़ है। तो उन्होंने इस तरह से, यानी इन नसीहतों को उन्होंने इस तरह से लिया कि जैसे कोई देखी हुई चीज़ है या कोई महसूस की हुई चीज़ है, तो उस महसूस की हुई चीज़ को, उस मुशाहिदा की हुई चीज़ को उन्होंने ऐसे करके मुट्ठी में बंद कर लिया। इससे मुराद ये है कि उन्होंने इसको अपने दिल के अंदर उतार लिया, अपने जहन में उतार लिया, और उन्होंने ये तहैया कर लिया, ये इरादा कर लिया कि वो इसको मुस्तकिल मजाजी से अपनी अमली ज़िंदगी में दाखिल करेंगे और इसके ऊपर वो अमल करेंगे। कहने से मुराद ये है, ये जो मैंने ये 3 नसीहतें रखी हैं ना, ये सिर्फ़ ये है कि सिर्फ़ एक होता है इल्म होता है ना जानना, ठीक है ना, कि हमने एक चीज़ पढ़ी, हमने जान लिया। एक होता है उसको समझना, और इसका अगला जो दर्जा होता है उसके ऊपर अमल करना। तो जो अमल करना है ना, वो सबसे ज़्यादा अहम है। और अमल करने के बाद अगला दर्जा है उसको अपनी ज़ात के ऊपर नाफिज कर लेना और अपनी ज़िंदगियों में दाखिल कर लेना, और अपने आम मामूलात ज़िंदगी में उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को तरतीब देना। तो उन्होंने ये तहैया कर लिया कि इंशाअल्लाह ताला मैं इन चीज़ों को, इन बातों को, इन नसीहतों को अब मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में बरतूँगा। तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि जिस तरह से उन्होंने सुफ़ियान सौरी रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी, हम भी इसी तरह से जो भी हमें मुनासिब लगे, या तो हम अपनी मुट्ठियाँ इसी तरह से बंद कर लें कि हमने इन नसीहतों को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक से अपनी ज़िंदगी में हमने लेके चलना है, हमने कसरत से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, हमने
कसरत से इस्तिग़फ़ार करना है, हमने कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में भी बहुत बरकत होगी, बहुत बरकत होगी। क्योंकि ये जो बातें हैं ना, ये आम नसाए नहीं हैं, ये कुरान से इस्तदलाल करके उन्होंने ये बताया है। ये मेरी आपकी किसी की भी कही हुई बातें नहीं हैं, ये नसीहतें भी कुरानिक नसीहतें हैं। और इससे बढ़कर क्या बात होगी कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। दरअसल जब हम पढ़ते हैं ना, उसको पढ़ने की हद तक पढ़ते हैं, उसको महसूस नहीं करते, उसको उस तरह से मुशाहिदा नहीं करते, उसको उस तरह से हम नहीं लेते, उसको अपनी जैसे उन्होंने ऐसे करके मुट्ठी बंद कर ली थी, इस तरह से हम उसको तहैया नहीं करते कि हमने इसको करना है। अगर हम ये तहैया कर लें, अगर हम इरादा कर लें, हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार बंदे बन जाएं ना, तो हमें फिर अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं वो दुनिया की नेमतें भी उसको मिल जाएं, आखिरत की नेमतें भी मिल जाएं। और ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है, और अल्लाह ताला के वादे से बढ़कर किसी का वादा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना, कुरान में कहता है कि मैं उनके ऊपर आसमान बरसता हुआ भेजूँगा और उनकी ज़िंदगी में बहारें आ जाएंगी, नहरें जारी कर दूँगा, फलों से नवाजूँगा, औलादों से नवाजूँगा। अल्लाह ताला पहले आखिरत की बात नहीं करता, पहले दुनिया की कुशादगी की बात करता है। अगर कमी है ना, तो वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, हमारे अमलों के अंदर कमी है, जिसकी वजह से हम कसम पुरसी का शिकार हैं। मैं फिर एक बात कहूँगी, और ये बार बार मेरे जहन में आती है, ये बार बार मेरे जहन में आती है, अगर कमी है हमारे अंदर है। अब देखें, बात ये है कि डामाडोल रहने से कोई चीज़ हासिल नहीं होती, ना इधर के ना उधर के, ठीक है ना। दो ही ग्रुप है ना, या अल्लाह को मानने वाले या अल्लाह को ना मानने वाले, दरमियान में कोई चीज़ नहीं है। अब वो जो नॉन बिलीवर्स हैं ना, वो अपने उन अकायद के ऊपर उन्होंने अफादियत के नज़रिए बनाए हुए हैं, ठीक है ना। जब उन्होंने अफादियत के नज़रिए बनाए हुए हैं और वो उन अफादियत के नज़रियों के ऊपर वो मुस्तकिल मजाजी से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, ठीक है ना, मुस्तकिल मजाजी से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरे इखलास के साथ वो काम कर रहे हैं, तो उनको उसके रिज़ल्ट मिल रहे हैं, ख्वाह वो नॉन बिलीवर हैं। हम क्या हैं? हम कहाँ खड़े हैं? हम कहाँ खड़े हैं? हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ऐसे ही है ना, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन क्या हम वैसे ही मुखलिस हैं जैसे वो लोग अपनी दुनिया के लिए मुखलिस हैं? क्या हम वैसे कमिटेड हैं जैसे वो कमिटेड हैं? क्या हम उसी तरह मेहनत कर रहे हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए जैसे वो अपने असूलों के ऊपर इतने ज़्यादा मुखलिस हैं कि उनको उस तरह से वो फॉलो कर रहे हैं? किस लिए फॉलो कर रहे हैं? क्या उन्होंने अपने रब को राज़ी करना है? उनकी ज़िंदगी में तो अब रब का कोई दखल नहीं है, सिर्फ ये दुनिया के चंद टकों के लिए और अपने ज़ाती मुफादात के लिए वो इतने मुखलिस हैं। तो अल्लाह की जन्नत जो बहुत वसी है और अल्लाह ताला की रज़ा जो सबसे ऊपर है, जो सबसे बुलंद है, तो क्या हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम मुखलिस हो जाएं? और अगर ये है ना कि ठंडे ठंडे जो है आपको अल्लाह ताला की रज़ा मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है, इस तरह से मुमकिन नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि क्या तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में ऐसे ही दाखिल हो जाओगे जितनी देर तक वो सारे मराहिल से तुम ना गुजरोगे? क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे सामने नहीं है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने नहीं है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किन किन मुशक्क़तों में से गुजारा, और जब वो सारी मुशक्क़तों में से, सारी आजमाइशों में से पूरे उतरे, तो फिर उन्हें अमामत मिली थी, फिर अमामत मिली थी। गो कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, वो रहमान है, वो रहीम है। इंशाअल्लाह 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 वो हम पे रहम करेगा, रहमत की नज़र करेगा। क्योंकि मैं ये नहीं चाह रही, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं मैं मतलब आगे कन्वे कर रही, मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि हम ज़रा गौर करें, हम गौर करें, अपने किरदार के ऊपर गौर करें, अपने अमलों के ऊपर गौर करें। अभी भी वक्त है, हम अपनी इस्लाह कर लें और पूरी ईमानदारी के साथ हम कोशिश करें अपने रब को राज़ी करने की। और ये कहाँ से होगा?
یہ کہاں سے ہوگا؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو بنا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیرو بنا لیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری. اگر ہم آپ کو ہیرو بنا لیں گے تو آپ کے نقش قدم کے اوپر چلیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ ہم منزل پر پہنچ سکیں گے بغیر غلطی کیے ہوئے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا تھا نا. اور مروب ہونا چھوڑ دیں، ہم مروب ہونا چھوڑ دیں ذہنی طور پر اور اخلاقی طور پر، اور اپنی ثقافت کو ہم لے کے چلیں، ہماری اپنی ایک شناخت ہو. اور اس کے لیے کیا ہے کہ ہم اسٹڈی کریں قرآن پاک کو، تو پھر ہی ہمیں سمجھ آئے گی، وہاں سے ہی ہم روشنی لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. تو انشاءاللہ تعالی ہم بغیر کسی دقت کے انشاءاللہ تعالی ہمیں ہماری منزل مل جائے گی. لیکن کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو میری راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. اس کے لیے کوشش شرط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور رزق طیب عطا فرمائے اور ایسا عمل عطا فرمائے جو کہ اس کے ہاں قبول ہو جائے. آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت سے رہیں، عافیت سے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام.